Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. In the last lecture we had started the chapter that is 1.6 Tiger Hills, where we had seen how we conquered, how we won on the land taken away by Pakistani militants, soldiers, and how our Indian soldiers had proved in the world that they are the best. They are the best, and we know to again recapture our land if any difficult situation happens. So, the land that belongs to India is going to be India's forever. Thinking this in mind, last lecture I had taught you already the introduction of the Tiger Hill, where it is, and what was the war, what was the name of the war, that is the Kargil war, how many soldiers were there, how they fought, all we had known. Secondly, we had seen this chapter is written by General Ved Prakash Malik, who he is. We had studied. He had written one book, that is Kargil, From Surprise to Victory. We had seen the short introduction of this. Later on, we had seen the summary of this chapter, where we had fully seen how the Kargil war was fought and how the Indian soldiers had shown their bravery, determination and hard work to recapture the land and throw away the Pakistani forces into their own border. And lastly, we had started doing line by line explanation of this chapter. However, we had not completed, we had just started, we had done up to 2 paragraphs. So what we are going to do today, please see it is listed in this slide. We are going to do the remaining part of this chapter, that is the whole chapter is remaining. We will see the line by line explanation of this chapter, where we are going to see words and their meaning also. Okay, so all these things we are going to look upon in this chapter. So let's get quickly started. So let's move on to the third paragraph of the chapter Tiger Hills. From where we stopped, from there we are going to start. So please see para number 3rd on page number 54. Brigadier MPS Bajwa, Commander 192 Mountain Brigade, assigned, underline the word assigned, write down the meaning, appointed a duty, the mission meaning, right, you can see in the glossary it is given, a particular task done by a person or a group, a particular aim or duty that one wants to fulfill more than anything else, of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers. Grenadiers, we all know 18 grenadiers. Again I am repeating in this lecture, it is 18 battalion of the Grenadiers Regiment of Indian Army, and was part of the order of battle Kargil war. So now rested and recouped meaning recovered after their achievements at Toling we all know, टोल नाका जो होता है, एंड वो जो था, और हम ये एरिया का नाम है, and to 8 Sikh me we all know that soldiers of Sikh regiment, 8 जवान जो कि सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, which was already deployed at its base. Both these units were assisted by a crack team from the High Altitude Warfare School with maximum possible artillery, engineering and other combat support. अभी आर्टिलरी का मीनिंग आप लोग लिख के ले लो. आर्टिलरी मीन्स वेपन्स टू लॉन्च मिसाइल्स और ग्रेनेड्स ऑन ग्राउंड. ठीक है, ग्रेनेड और ग्रेनेड्स या मिसाइल डालने के लिए जो वेपन यूज़ होता है उसको आर्टिलरीज कहते हैं. ठीक है, और तो बाकी कॉमन है. कॉम्बैट वी ऑल नो, कॉम्बैट मीन्स फाइटिंग बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, 2 आर्म्ड फोर्सेस. यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स का फाइट हो रहा था पाकिस्तानी सोल्जर्स से. सो देयर वाज अ कॉम्बैट मीन्स अ फाइट बिटवीन
इंडिया, इंडियन सोल्जर्स एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स। अब देखो ये पैराग्राफ में हमको सारे हार्ड वर्ड्स का मीनिंग मिल चुका है, तो अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे वी विल पे अटेंशन। जो ब्रिगेडियर MPS बाजवा थे ना, वो कमांडर थे, और वो जो कमांडर थे वो कहाँ के थे, 192 माउंटेन ब्रिगेड पूरा उनको वो एरिया का असाइन किया था कि तुम ये पूरे एरिया पे कैप्चर करने जा रहे हो, रिकैप्चर करने जा रहे हो। और वो कमांडर के अंदर बहुत सारे अंडर आप देखोगे देयर आर सो मेनी सोल्जर्स वर देयर। तो उन लोगों को एक मिशन दिया गया। व्हाट वाज द मिशन स्टूडेंट? एक ड्यूटी दिया गया कि दैट कारगिल को रिकैप्चर करने का है। अब वो रिकैप्चर करने के लिए सबसे पहले जो टोल नाका था, टोलिंग नाका और हम्प, ये दोनों को पहले कैप्चर करना है। मैंने कहा ना टाइगर हिल तक पहुंचना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो लोग दूर से देख के सोल्जर्स को किल कर दे रहे थे। तो इसलिए टाइगर हिल तक पहुंचने के लिए पहले स्मॉल स्मॉल ट्रूप्स बनाया गया सोल्जर्स का, इंडियन सोल्जर्स का, और वो सोल्जर्स को टोल नाके पे या हम पे सिविल ड्रेसेस में या किसी तरह उन लोगों को वहाँ पे खड़ा किया जा रहा था। उसके साथ सिख रेजिमेंट के, मतलब सिख पंजाब में मालूम है सिख हैं, तो सिख रेजिमेंट के आप देखोगे 8 स्पेशलिस्ट ऑफ कमांडर्स को तैयार किया गया फॉर द फाइट, ठीक है, फॉर द कॉम्बैट। और वो लोग जो थे दे आर नॉट सो कॉमन, दे आर नोन फॉर क्रैकिंग ऑल द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड दे आर टॉट इन सच अ वे। उन लोगों को इस तरीके से वॉर फेयर स्कूल में ऐसा सिखाया गया है कि दैट दे आर नोन फॉर एनी ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू कॉम्बैट एंड फाइट एंड विन। सो ये सारा थिंग्स के साथ ये लोगों को एक एक जगह जगह पे अपॉइंट किया गया बाय MPS बाजवा ने इन लोगों को अपॉइंट किया। और ये लोग आर्टिलरीज लेके, आर्टिलरीज मतलब होता है रॉकेट लॉन्चर, और यू कैन सी ग्रेनेडियर डालने के लिए जो मशीन रहती है, आप देख सकते हो पिक्चर में, ये लेकर ये लोग धीरे धीरे अपने अपने जहाँ जहाँ पे जगह पे इनको बोला गया था टू हॉल्ट, देवर going there and just ready for the combat and just ready to support the combat. It means just ready for the Indian army is just ready to combat or fight with the Pakistan. ये तो था ये पैराग्राफ का मीनिंग। नेक्स्ट पैरा, थ्रूआउट द लास्ट वीक ऑफ द जून 1999 18 ग्रेनेडियर्स। अब ग्रेनेडियर्स मालूम है ना, सोल्जर्स आर्म्ड विथ ग्रेनेड्स, जिनके पास ग्रेनेड्स रहता है वो ऑन द स्पॉट कुछ भी डिफिकल्ट देखते हैं, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इज हैपनिंग एंड इट इज़ डिफिकल्ट थ्रेट फॉर अ कंट्री इंडिया, तो वो लोग ग्रेनेड फेंक देते हैं, ठीक है, टू सेव आवर कंट्री। प्रोव टू स्टेब्लिश द extent of the army enemies defenses and to scout, underline the word to scout। वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, देखो साइड में मार्जिन में, कि टू स्काउट मतलब क्या होता है। सो राइट डाउन द मीनिंग हियर। इट मीन्स टू परफॉर्म ए स्मॉल सर्वे विथ अ स्पेसिफिक एम, ठीक है, टू परफॉर्म ए स्मॉल सर्वे विथ ए स्पेसिफिक एम। सबको एक एक टारगेट दिया गया था कि आपको ये अचीव करना है, ये एरिया आपको अचीव करना है, ये एरिया आपको क्रैक करके जीतना है। तो इस तरीके से सबको दिया गया उनका सुटेबल रूट्स, ठीक है। आवर इंडियन आर्मी पीपल वर गॉट, ऑल द soldiers were got small routes and they have to win over that place. They had totally captured the Kargil and टाइगर हिल ऑफ कोर्स। तो धीरे धीरे वो लोगों को एक एक एरिया को कैप्चर करना था। तो ये करने के लिए दे रिक्वायर अ गुड ट्रुप ऑफ पीपल। अ साइमल्टेनियस मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट emerged as the best strategy. The commanding officer of 41 Field Regiment, underline the word 41 Field Regiment, I will give you the answer of this. 41 Field Regiment ये लोग कौन होते हैं पता है? इनके पास ना स्टूडेंट शॉर्ट रेंज का गन रहता है। 41 Field Regiment, it means, student, please write down the meaning, soldiers who are supported with arms and services. And in this regiment, student, you can see that they are having the similar color dress uniform, and the plan that they do to combat means to fight with another you can see person, that is another side, that is here the another side is Pakistani soldiers, that they plan a very different strategy. तो उसको कहते हैं 41 Field Regiment, ठीक है। तो 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fire plan। वो लोगों ने अलग से एक तैयारी किया था। आर्टिलरी आप देख सकते हो, दिस इज द आर्टिलरी, पिक्चर देख के समझ सकते हो। आर्टिलरी का से उन लोगों ने सोचा, तोप वगैरह जो होते हैं उनसे सोचा कि उन लोग डायरेक्ट फायर करेंगे, ओके। सो उनका अलग प्लान चल रहा था।
इंडिविजुअल गन्स वर रेंज्ड सो एज टू कवर ईच ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एवरी यू कैन सी सोल्जर्स वर गिवन द मीडियम रेंज गन्स सो दैट इफ एनी ऑफ द problematic situation happen, you can see the soldiers can able to combat or fight with the opponent party. Bofors guns were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy. आप देखोगे बोफोर्स के जो गन्स थे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के थे और वो भी सभी सोल्जर्स को दिए गए टू सेव द लैंड. ऑन द डे ऑफ द असॉल्ट, जिस दिन मेन फाइट था, नियरली 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स 122 mm मल्टी बैरल्ड ग्रेड रॉकेट लॉन्चर्स एंड मोटार्स रेन्ड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन द एनिमी एट द टाइगर हिल. यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, जिस दिन मेन वॉर था, एट दैट वॉर इफ यू वुड सी ऑल द सोल्जर्स वर गिवन मीडियम गन एंड विच इज हैविंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ 122 mm. ऑल्सो ग्रेट रॉकेट लॉन्चर्स वर देयर, ठीक है, इन द बैटल फील्ड में क्या क्या था, रॉकेट लॉन्चर्स था, मोटार्स था, ग्रेनेड्स था, फुल थिंग था. जैसे आप देखोगे इन रेनी सीजन द वाटर फ्लोट्स, सेम वे द war is consist of these rocket launchers, these grenades, these mortars. It's like raining and everywhere there is a death, destruction of the enemy of the India country. तो टाइगर हिल के ऊपर जितने भी आप देखोगे सोल्जर्स थे, they were very strongly fighting with the opponent side, that is पाकिस्तानी सोल्जर्स. The air force भी बाद में आ गया, टारगेटेड टाइगर हिल, क्योंकि टाइगर हिल बहुत ही टॉलेस्ट है, आपको पिक्चर में भी मैंने दिखाया है. ऑन द 2nd and 3rd जुलाई को फाइनली एयरक्राफ्ट हैड ऑल्सो केम एंड दे हैड ब्रॉट फ्रॉम देयर एयरक्राफ्ट रॉकेट लॉन्चर्स, वहीं से उन्होंने रॉकेट दिस थ्रो सो दैट वी कैन एबल टू कैप्चर द वोल टाइगर, बिकॉज पाकिस्तानीज हैड एक्चुअली कॉन्कर्ड द top hill of the Tiger Hill. So it was required that the force, our air force should come and conquer, because air force is having a bull's eye. Underline the word bull's eye, it means a very sharp eye that they are having. Conquered so many land and several times during its mission. So even air force you can see played a very important role. So that here it has been said in this paragraph. एक बार और मैं आपको clearly I will tell you that throughout the last week of the June 1999 grenadiers को रखा गया. The grenadiers were very strongly fighting और उसके साथ 41 फील्ड रेजिमेंट्स को भी ले आया गया. और जिस दिन वॉर था उस दिन तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर्फ बारिश किसकी हो रही है, यू कैन सी रॉकेट लॉन्चर्स की, मोटार्स की, ग्रेनेड्स की, एंड एवरीवेयर देयर इज अ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द अपोनेंट साइड, दैट इज पाकिस्तानी सोल्जर्स. एंड एट लास्ट you can see even our air force had also joined to conquer the whole Tiger Hill, which was being captured in a wrong way by Pakistani soldiers. Next paragraph. For the first time in India military history, a TV channel covered the battle live, a sign of progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence. The Tiger Hill feature extends about 2,200 meters from west to east and about 1,000 meters from north to south. The main extension is towards the west, on which there are two prominent protrusions. Protrusion meaning a thing that extends from the place or from the surface, something that sticks out. I will elaborate in teaching. The first approximately 500 meters west of Tiger Hill had been named India Gate and the second is Helmet. मैंने पिक्चर में आपको बताया भी था. Located another 300 meters away, approximately one company of 12 Northern Light
इन्फेंट्री दैट इज पाकिस्तान हेल्ड द वोल फीचर। अब इसका मीनिंग सोचो, समझो। पहली बार हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि मीडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बार बार मैं बोल रही हूँ, मीडिया इसमें ये वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहले कब किया था? जब भी बताने के लिए कि ये टाइगर हिल कैप्चर कर लिया है पाकिस्तानियों ने। तो ये हमको एक ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एक स्पाई न्यूज़ वी गॉट फ्रॉम द मीडिया, एंड व्हेन वी गॉट द मैसेज फ्रॉम द मीडिया, our soldiers now become more responsible, more you can see taking the charge to throw away these Pakistani soldiers from our country. तो जब भी फाइट भी हो रहा था ना, तो you can see that the media persons had strongly standing with the soldiers and clicking the pictures and showing to the world that see how the Pakistani soldiers are coming in our country and capturing the place that do not belong to them, जो place उनका नहीं है, फिर भी वो लोग आपके अपना एरिया कैप्चर कर रहे हैं, एंड एक्सप्लॉइटिंग आर इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज इंडियन सोल्जर्स। तो ये चीज़ उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि कैसे पाकिस्तानी इन अ रॉन्ग वे, डिसेप्टिव वे, यू कैन सी डिसीट, गलत काम करके वो लोग हमारे कंट्री का लैंड चुरा रहे हैं, एंड दे आर शोइंग ऑक्युपाइंग द लैंड, एंड they are showing that the land belongs to India, which is and the land belongs to Pakistan, which is totally wrong. तो मीडिया हैड शोन द ट्रांसपेरेंसी, जैसा जहाँ पे वॉर हो रहा था दिखाया गया कि देखो किस तरीके से हमारे कंट्री के लैंड को कॉन्कर किया गया पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी कैसे हमारे सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को टारगेट कर रहे हैं इन द वॉर। ऑल दिस बिन शोन। टाइगर हिल अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, इट्स अ वेरी टॉलेस्ट माउंटेनरी एरिया, समवेयर अराउंड 2200 मीटर्स वेस्ट टू ईस्ट, और 1000 मीटर्स से पकड़ो तो नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। और ये ऐसा प्रोमिनेंट प्रोट्रूशंस है। प्रोट्रूशंस मीन्स क्या होता है, मतलब अ थिंग दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्लेस और फ्रॉम द सरफेस समथिंग दैट स्टिक्स आउट। ऐसा मतलब लाइक माउंटेनरी एरिया से ऊंचा उठ के, वन मोर लाइक माउंटेनरी एरिया, यू कैन सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड इट्स अ टॉल माउंटेनरी एरिया, समवेयर अराउंड यू कैन सी 500 meters west of Tiger Hill. If you would see, there are 3 more mountains are there which are also tall, और वो है इंडिया गेट, second is Helmet, as I had shown in this picture. They are also equivalent tall as Tiger Hill, and their heights are somewhere around 300 meters, okay, and approximately one company of 12 northern light infantry, that is Pakistan, held the whole feature. और इतना याद रखो कि सिर्फ उन लोगों ने टाइगर हिल कैप्चर नहीं किया था, they had even captured India Gate, that is one more mountainery area, mountainery peak, that is सिमिलर टू टाइगर हिल एंड हेलमेट। ये तीनों को वो लोगों ने माउंटेनरी एरिया को पूरा कैप्चर करके बैठ गए थे पाकिस्तानी सोल्जर्स। This is said in this paragraph. Move to the next paragraph. At 1900 hours on 3rd July, 18 grenadiers commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. A company captured an intermediate position called Tongue by 1 hour 30 minutes, we can see hours, on 4th July. Further advance along the southern eastern spur. Spur means, underline the word, it means an area of high ground extending from a mountainary area. Normal area से उठ के ऊंचा जो लैंड को बोलते हैं स्पर, लीडिंग टू टाइगर हिल। मैंने बोला है टाइगर हिल थोड़ा मतलब माउंटेनियर एरिया से उठ के और बड़ा, आप देखोगे ऐसा सिचुएटेड है, तो वो उसको स्पर बोलते हैं। वॉज स्टॉल्ड ड्यू टू द एक्यूरेट फायर बाय द एनिमी फ्रॉम इंडिया गेट, हेलमेट एंड टॉप। तो ये आप देखोगे स्टूडेंट, नाउ पे अटेंशन व्हाट हियर इन दिस पैराग्राफ इट हैज़ बीन सेड। जैसे ही वॉर का 19 आवर्स हो गया, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस 19 घंटे से लड़ाई चल रही है। जब 3rd जुलाई आया ना, तो 18 ग्रेनेडियर्स बहुत एक्टिव हो गए। वाई? क्योंकि टाइगर हिल पे ना सिचुएशन बहुत ख़राब था, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर,
because of the darkness. You can see the area was now covered with total cloud से वो area पूरा ढक गया था और इतना bad weather था that nothing can be seen. But our 18 Indian grenadiers rank के जो soldiers थे वो लोगों ने they had confidently came out with a fire plan and artillery, it means तोप वगैरह सब लेके वो लोग आगे बढ़े. They made one you can see one कंपनी, मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता रही हूँ. उन लोगों ने ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी और डी कंपनी में पहले से ही आपको मालूम होगा ब्रिगेडियर MP.S. बाजवा ने एक प्लान बनाया था, कॉम्बैट प्लान कि कैसे लड़ना है. तो वो लोग ए कंपनी का टारगेट था कि उनको कैप्चर क्या करना था 4 जुलाई तक कैसे भी टाइगर हिल के साइड में जो बिग माउंटेनरी एरिया है लाइक हेलमेट, इंडिया गेट और टॉप पे जाके कॉन्कर करना था. तो 18 ग्रेनेडियर्स विथ देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विथ देयर स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क एंड वी कैन सी विथ देयर पेशेंस, दे one by one started going ahead and capturing or recapturing, we can say, sorry, recapturing our country place. Next para. Meanwhile, Captain Sachin Nimbalkar led the D Company assault from the east. His company had to negotiate steep escarpment, meaning is given a long steep slope at the edge of the plateau. Must remember mountaineering area है तो area बहुत the road is very difficult for any soldiers to climb. और थोड़ा भी उनका अगर balance if they had lost, if any of the soldiers while climbing the mountaineering area, if they had lost if they lost the balance, they are definitely going to fall in the huge you can see depth. इतने अंदर वो गिर जाएंगे that they are directly going to die. So you can see the place is so difficult for the soldiers to climb, because if any disbalance happen they are going to lose their life. But still our Indian soldiers with their strong brave, with showing their strong braveness, showing their strong, you can see, hard work and determination, they were moving ahead and ahead. तो सचिन निम्बालकर ने हमारे कैप्टन जो थे डी कंपनी के, उन्होंने एक असॉल्ट को आगे बढ़ाते हुए, ये लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वो माउंटेनरी एरिया के ऐसे प्लेस पे पहुँचे वहाँ पे बहुत डार्कनेस था और बहुत ही आप देखोगे वेदर वॉज सो बैड. बट स्टिल दिस एस्कार्पमेंट, इट मीन्स उन्होंने स्लोप और जो माउंटेनरी एरिया जो थी जो इतनी ख़राब थी, कुछ दिख नहीं रहा था, इट वॉज टोटली darkness, but still in the hand having the guns, he moved ahead to climb the mountain and recapture our lands which are taken away by these soldiers. His approach took the enemy by surprise. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of area Kolar. ठीक है, ये सब एरिया के नाम है जो उन्होंने प्लान बनाया था कि कैसे कैसे हम लोग को एक एक करके कॉन्कर करना है. विच ले विद इन 100 मीटर्स ऑफ टाइगर हिल टॉप. अब इसमें क्या बोला है, प्लीज़ पे अटेंशन स्टूडेंट. जो सचिन निम्बालकर जो हमारे कैप्टन थे डी कंपनी के, व्हाट ही हैड डन, हिज अप्रोच टुक द एनिमी बाय सरप्राइज. एनिमी मतलब पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने जब ये देखा कि सचिन निम्बालकर डी कंपनी को हेड करते हुए आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अदर वे से ही इज़ कमिंग एंड कैप्चरिंग द लैंड, द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर शॉक टू सी दिस इंडियाज प्लान. उन लोग को इंडिया का प्लान ही नहीं समझ में आ रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि जो भी सामने से आता था टाइगर हिल पे दे जस्ट किल देम. बट दे वर दीज आर इंडियन सोल्जर्स वर गोइंग इन अ डिफरेंट पाथ, डिफरेंट वे, एंड इन दिस वे दे वन बाय वन कैप्चरिंग द लैंड. अब सोल्जर्स जो थे पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनको अब समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है. एंड हियर इंडियन सोल्जर्स विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दे आर फाइटिंग, फायर फाइटिंग, एंड डी कंपनी हेड इज सचिन निम्बालकर. इफ यू वुड सी, ही इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ऑक्युपाइंग द लैंड नियर एरिया कॉलर एंड ऑफ कोर्स द टाइगर हिल टॉप पे धीरे धीरे आप देखोगे वो बढ़ते चले जा रहे थे.
On another front, C Company and Ghatak, that is घातक मीन्स वो जो कमांडोज का टीम है उनका नाम जो है वो घातक है, मीन्स वेरी डेंजरस. Platoons, underline the word platoon and write down the meaning. Platoon means troop of military forces under Lieutenant Balwan Singh also surprised the enemy, this time along the difficult northeastern spur, and obtained a toehold just 30 meters from the top. Toehold, underline the word toehold, write down the meaning. A strong first position from where progress can be made. So here you can see what writer, that is General Ved Prakash Malik, is saying that जैसे D company strong हो गई थी to reach up to the Tiger Hill top, वैसी C company भी एक तरफ से ट्रुप लेके आगे बढ़ रही थी. और कौन उसको लीड कर रहा था? इट इज़ नन अदर देन बलवान सिंह, जो एनिमी को फिर से सरप्राइज किए बाय देयर एनिमी. मतलब कौन एनिमी? दे आर नन अदर देन द पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स. सो उनको भी एकदम सरप्राइज हुआ व्हेन दे हैड सीन इंडियन सोल्जर्स हु आर कमिंग from one side to the another side and conquering the land. So you can see this Balwant Singh is now conquering or recapturing नॉर्थ ईस्ट का जो ये टाइगर हिल का जो साइड था वो धीरे धीरे वो कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए. और धीरे धीरे आप देखोगे डे बाय आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे आर रीचिंग अप टू द टाइगर हिल. नेक्स्ट पैराग्राफ. एट 400 आवर्स, मतलब इतना डेज, मतलब 400 आवर्स, मतलब इस मिशन पे आप देखोगे लाइक 400 आवर्स कंप्लीट हो गए थे और आ गया था हमारा 4th जुलाई. आफ्टर अ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड, अंडरलाइन द वर्ड, इट मीन्स द परफॉर्मेंस. Okay, all the soldiers were strong to give their performance as a artillery. Artillery, we all know artillery, it means the force. Okay, artillery, you can see the picture and understand these none other than weapons, especially you can see which weapon carriers which are, you can see, used to throw the grenades, the mortars from one place to another. Bombardment, it means it was been bursted from one side to the another side. Bombarded, underline the word and write down the meaning. It means it is been bursted. Okay, bombarded means bursted. And who this is done by Sachin Nimbalkar and Balwant Singh along with their men approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff. Cliff, we all know, it means स्टिप रॉक, जो चट्टान बोलते हैं. तो टाइगर हिल मैंने बताया बहुत डेंजरस प्लेस है एंड द रॉक्स आर वेरी मच डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब बाय द सोल्जर्स ऑफ इंडिया. सो दे आर क्लाइंबिंग वन आफ्टर द अनदर, ओके, विद देयर strong determination and willpower, and caught the enemy unawares. So day by day they are catching up the you can see militants and Pakistani soldiers who are hiding in the you can see small areas of Tiger Hill and thus clearing the land. एक के बाद एक वो लोग टाइगर हिल के एक छोटे जगहों को पकड़ रहे थे जहाँ पे बंकर्स थे. उनको पहले वो लोग बम्बार्ड करके टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे थे और फिर उसके ऊपर जाके अगर कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट्स या सोल्जर्स उनको दिख रहा था तो उनको किल कर रहे थे. ऐसे करते करते आप देखोगे हमारे देश के जवान आगे बढ़ते चले जा रहे थे और वीरता की तरफ पहुंचते जा रहे थे और टाइगर हिल को फिर से कैप्चर करने के लिए दे आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. आफ्टर अ स्पेल, अंडरलाइन द वर्ड स्पेल मीनिंग अ शॉर्ट पीरियड of hand-to-hand fighting, they succeeded in capturing the objective. Although 18 grenadiers held the top now, linking up with them was not easy. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counter attacks.
अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैंने कहा था ना टाइगर हिल पे बहुत सारे प्लेसेस पे वो लोगों ने स्मॉल स्मॉल हब्स बना के रखे हुए थे पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स एंड सोल्जर्स, और जो भी इंडियन को देखते थे वो लोग वहीं पे उसको मार देते थे। तो सोल्जर्स हमारे देश के इस तरीके से स्ट्रांगली दे आर मूविंग अहेड। फर्स्ट दे आर विद देयर आर्टिलरीज के साथ गए थे, तो पहले वो आर्टिलरीज के हेल्प से पहले बम्बार्ड करके इट मीन डिस्ट्रॉय कर रहे थे लैंड। फिर कोई सोल्जर्स दिख रहा था या टेररिस्ट दिख रहा था पाकिस्तानी का, तो हमारे इंडियन के जो सोल्जर्स हैं वो लोग स्ट्रांगली उनके सामने हैंड टू हैंड फाइटिंग भी चला। देखो they were means Indian soldiers are throwing the bullets, so they are also throwing the bullets. इस तरीके का hand to hand you can see the combat was happened, and even 18 grenadiers, even they had taken this great responsibility to actually catch up these Pakistani soldiers and throw or kill directly। देख के ही उनको एक के बाद एक they are killing these पाकिस्तानी सोल्जर्स बिकॉज दे आर नॉट सरेंडरिंग। अभी हमारे इंडिया में बहुत एक अच्छी बात बताओ सोल्जर्स का क्या है, अगर सामने वाला सरेंडर करता है तो इंडियन सोल्जर विल नॉट थ्रो द बुलेट ऑन देम, बट here what had happened is that Pakistani soldiers were also doing the counter attacks। मतलब क्या होता है, वो लोग भी उसी तरीके से हमारे इंडियन सोल्जर्स को मार रहे थे और हमारे इंडियन सोल्जर्स की भी जान जा रहे थे इस बैटल फील्ड में। बहुत लोगों की यू कैन सी दे हैड सेक्रीफाइस्ड फॉर देयर मदरलैंड। सो ये सब देख के हमारे इंडियन सोल्जर्स भी working lots of taking risk and doing the counter attacks with the enemy party। Next paragraph you can see, one of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured before the next assault can be launched। Throughout the next morning, artillery dwells, underline the word dwells, dwells meaning यहाँ पे मीनिंग है अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स इन्वॉल्विंग वेपन। ड्वेल मतलब होता है दो लोग लगे पड़े हैं फाइट में, मतलब इंडिया से अगर बहुत ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं तो उनके तरफ से भी ग्रेनेड्स उतने ही इक्वल अमाउंट में आ रहे थे। इट मीन्स वो लोग अपने नेशन से सोचो इतना वेपन्स लेकर आए हैं, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल्स लेकर आए हैं हमारे कंट्री के पीस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। Yes, what we came to know that these Pakistani soldiers and militants had came with so much of fire plan in their mind that they are destroying our peace of our nation। ये bombarding वगैरह होता है, you know, अटैक्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, what is the result? The result is that our peace of our nation is being destroyed। So that's why here it is been happened over here। So later on you can see what here it has been said in a proper way। throughout the next morning तक आर्टिलरी, मतलब आप देखोगे आर्टिलरी, ये जो आर्टिलरी है इससे आप वेपन्स देखो, और यू कैन सी इवन नॉट ओनली वेपन्स बट ऑल्सो grenades and all been thrown, and not India is just throwing, Pakistani soldiers are equally giving the same counter attack। Okay, continued casualties, underline the word casualties, write down the meaning of casualties means death or injuries। बहुत सारे soldiers का मैंने बताया ना इसमें death हो रहा था, not only from our country but also from their side, that is Pakistani soldiers। you can see Pakistani soldiers की भी death हो रहे थे, तो हमारे इंडिया के भी soldiers के बहुत लोगों की जान जा रहे थे या they are badly injured, उसको बोलते हैं casualties। माउंटेन ऑन बोथ द साइड, ठीक है, जिनका डेथ हो रहा था या किसी का फॉर एग्जांपल इंजरी लग रहा था तो उनको उसी टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दिया जा रहा था। द ग्रेनेडियर्स हंग ऑन देयर प्रिकॉशियस, अंडरलाइन द मीनिंग इज गिवन नॉट सेफ और डेंजरस। पर्च इज गिवन हाई सीट और पोजिशन विथ ग्रीट, GRIT, ग्रीट, अंडरलाइन द वर्ड, इट मीन्स ग्रीट मीनिंग परसिवरेंस मतलब कि हार्डवर्क एंड पेशेंस। परसिवरेंस मतलब होता है पेशेंस, और किसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पेशेंस था, ग्रेनेडियर्स का। मैंने बताया ना पूरे चैप्टर में याद रखना, कारगिल वॉर में 18 ग्रेनेडियर्स एंड सिख, okay, 18 grenadiers and you can see those Sikh regiment people
ओके, दैट इज 8 पीपल्स वर देयर, 8 सिख के जो जवान थे और 18 ग्रेनेडियर्स हैड प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन कैप्चरिंग और रिकैप्चरिंग द कारगिल वॉर. So you can see student, the grenadiers hung on to their precautious means very dangerous. मैंने बताया टाइगर हिल इज़ अ प्लेस, इट इज़ वेरी डेंजर प्लेस. तो वहाँ पे बैठ के वो लोग वहाँ से विथ लॉट्स ऑफ परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, ग्रेट मीन्स परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ, साहस के साथ लगे हुए थे और पाकिस्तानी सोल्जर्स को बराबर काउंटर अटैक कर रहे थे. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. आप देखोगे इस पूरे वर्क में योगेंद्र सिंह यादव, who was the leader of this team of 18 grenadiers, exhibited means shown exceptional. It means nobody can nobody can think that strong courage was being shown by Grenadier Yogendra Singh Yadav during this assault. It means during this war, this man had shown his full bravery for the motherland, our India. So by this we come to the end of this lecture. Remaining part of this chapter, that is 1.6 Tiger Hill, written by General Ved Prakash Malik, we are going to do in our next lecture. Till then, read the chapter very carefully. Try to write down glossary of words, that is word meaning, and enjoy learning. This is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe.